السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. سب لوگ مائک آن کریں, دعا پڑھیں گے. سب لوگ مائک آن کریں, کسی کا بھی مائک بند نہیں رہنا. دعا پڑھتے وقت میں مائک کھلا رہنا. نوشیبہ پروین. دعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ نہیں آ رہے ہیں 2-3 دن سے؟ نہیں وہ آ رہے تھے, وہ نیٹ ورک نہیں تھا نا. کل بھی میں لی تھی لیکن چل نہیں رہا تھا, میری طرف آواز نہیں آ رہی تھی آپ کی. اچھا, امپورٹنٹ لیسن تھا نا, پھر آپ اس میں سن لیجیے ریکارڈنگ میں. جی لینے کے میں صبح ہی اٹھ جاتی ہوں لینے کے لیے, ڈیلی جوائن کرتی ہوں, لیکن ہو ہی نہیں پاتا, نیٹ ورک کا ایشو تھا نا, اسی وجہ سے نہیں ہو پایا. جی آپ دعا پڑھیں گے ابھی ایک منٹ کے بعد. جی اوکے, 1 منٹ کے بعد پڑھا تھا. لوگ اتنے سلو آ رہے ہیں, میں 5 منٹ سے انتظار کر رہا ہوں, لوگ آ ہی نہیں رہے. ہم نے نہیں سارے میری تو عادت سے, ٹائم میں تو ہٹا دیا, اس کے باوجود بھی نہیں آ رہے. میں 5:45 سے جوائن ہو جاتی ہوں. ہاں ٹھیک 5:30 ہے, سے میں جوائن آپ کا کرتی نہیں ہوں. بول رہا ہوں, جو نہیں آنے والوں کے لیے بول رہا ہوں. نہیں, اس سے طبیعت بھی نہیں تھی کہ تھوڑا نیٹ ورک کا ایشو تھا, اسی وجہ سے نہیں ہو پا کوئی رہے بات تھے. کوئی بات. جی. پہلے 60 لوگ آتے تھے, 70 لوگ آتے تھے, 50 آ رہے تھے. اب اتنی دیر ہو گئی, ابھی 25-26 بھی نہیں آئے. 22-25 اس میں بہت سے تو ایسے ہیں جو نئے ہیں, جو کلاس کے ہے ہی نہیں ہمارے, ویسے لوگ بھی آ رہے ہیں. کوئی بات نہیں, کوئی بھی آئے تو پڑھنے کے لیے آ رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی حضرت, میں سجیشن دینا چاہتا ہوں کہ اگر تھوڑا سا ٹائم آگے پیچھے کر دیتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ لوگ زیادہ جوائن مت ہو جائیں. کہاں چلے گئے یہ لوگ؟ مجھ سے مشورہ کر کے ٹھیک رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا ٹائم. ابھی ہم نیا ٹائم لگا کے سیٹ کر کے, تو تھوڑے دن دیکھتے ہیں انشاءاللہ. چلیے دعا پڑھائیے ہمارے نوشیبہ. جی اعوذ باللہ من السلام الشیطان. علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم. الرجیم. بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم. الرحیم. رب اشرح لی صدری رب رب اشرح اشرح لي لي صدري صدری ویسر لی امری ويسر لي ويسر أمري لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی واحلل عقدة من لساني لساني یفقہوا قولی. يفقهوا قولي. اے میرے رب, اے میرے رب, میرے رب میرا سینہ کھول دے میرا سینہ کھول دے میرا سینہ کھول دے اور میرے کام مجھ پر آسان کر دے. اور میرا میرا کام کام آسان کر دے. آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے اور میری زبان اور کی میری گرہ زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ جائیں تاکہ لوگ میری بات میری بات سمجھ جائے. ربي زدني علما. ربی زدنی علما. ربی زدنی علما. علما. مطلب وہ تھوڑا PDF نکالتے تو اس میں پڑھتے, اس طرح پورا یاد نہیں ہے مجھے. اے میرے رب,
اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما یا رب العالمین آمین آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. حضرات ہم جو ہے ہم نے شروع کیا تھا ہمارا نیا سبق، اور نئے سبق کا نام تھا احکام نون ساکن و تنوین. نئے سبق کا نام کیا تھا؟ احکام نون ساکن و تنوین، ہے نا؟ احکام نون ساکن و تنوین. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ سر آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. جی میں بورڈ ڈال رہا ہوں، وائٹ بورڈ ڈال رہا ہوں. ایک منٹ. اچھی لیاقت صاحب آپ اپنا ویڈیو بند کریے. بند کر دیجیے مہربانی کر کے. تمام لوگ اپنے مائک بند کر دیں. میں اچھا مائک بند کر دیتا ہوں. جی سب کے مائک بند ہیں. کہ کوئی نئے ہمارے کلاس میں جوائن ہوئے ہیں وہ لوگوں نے مائک کھلا رکھا ہوا ہے، بند کریں وہ لوگ. اور بھی کسی کا کھلا ہے؟ چلو ٹھیک ہے. ہم لوگوں نے نیا چیپٹر شروع کیا تھا، اس کا نام تھا احکام نون ساکن و تنوین. احکام نون ساکن، نون ساکن کس کو بولتے ہیں؟ جزم والی نون کو. نون ساکن کس کو بولتے ہیں؟ جزم والی نون کو. و تنوین، تنوین کس کو بولتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش، ہے نا؟ ہم یہ لیسن جو ہے پڑھنا شروع کریں. رولز آف نون ساکن و تنوین. جب بھی قرآن میں جزم والی نون آئیں گی، نون ساکن آئیں گی یا تنوین آئیں گی، ہم اس کو کیسا پڑھیں گے، ہم اس کو کیسا پڑھنا چاہیے. اس کو پڑھنے کے 4 قاعدے کل میں آپ کو بتا رہا تھا. اس کو پڑھنے کے کتنے قاعدے ہیں؟ 4 قاعدے ہیں، ہے نا؟ 4 قاعدوں سے نون ساکن اور تنوین آئیں گی تو 4 قاعدے ہیں اس کو پڑھنے کے، ہے نا؟ قاعدہ نمبر 1، قاعدہ نمبر 2، قاعدہ نمبر 3، قاعدہ نمبر 4. قاعدہ نمبر 1 کا نام ہے اظہار. اس کا نام ہے اظہار، کیونکہ اس کے پورے حرف جو ہے حلقی حرف ہے، اسی لیے اس کو بولتے ہیں اظہار حلقی. اس کے 6 حرف ہے، اس کے 6 حرف ہے اظہار حلقی، ہے نا؟ جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد، نون ساکن اور تنوین کے بعد دو زبر، دو زیر، دو پیش، اس کے بعد یہ 6 حرف آئیں گے. کون سے ہیں 6 حرف؟ خا، غین، ہا، عین، الف، حمزہ، جو چشمیہ. تو ہم کیا کریں گے؟ نون کو جلدی پڑھیں گے، نون کو نہیں کھینچیں گے، نون کا غنہ نہیں کریں گے. کل ہم نے اس کا پیج پڑھا، آپ لوگ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے پڑھ کے بتایا. اور پھر ایک دوسری کتاب میں سے بھی میں نے پڑھ کے بتایا کہ اظہار کیسا کرتے ہیں، اظہار کس کو بولتے ہیں، ہے نا؟ اور ابھی ہم اس کی تھوڑی پریکٹس کر کے آگے جائیں گے. دوسرے قاعدے کا نام ہے ادغام. دوسرے قاعدے کا نام ہے ادغام. اس کے بھی 6 حرف ہے اتفاق سے، وہ ہم آج پڑھیں گے. اس کے بعد تیسرے قاعدے کا نام ہے اخلاب. کیا ہے؟ اخلاب. ہم جب یہ پڑھیں گے میں اس کے بارے میں پورا بتاؤں گا آپ لوگوں کو. اور چوتھے قاعدے کا نام ہے اخفا. اخفا. یہ 4 قاعدے ہیں. آج ہم ادغام پڑھیں گے. پہلے ہم اظہار کا کل جو اظہار پڑھے تھے میں اس کو ایک بار پھر ریپیٹ کروں گا. آپ لوگ گھر میں پڑھ کے بھی آئے تھے، میں وائس میسج میں ریکارڈنگ کر کے بھی بھیجا تھا، آپ لوگ دیکھے ہوں گے. اظہار کس کو بولتے ہیں، ہے نا؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آئیں گا، خا، غین، ہا، عین، الف، حمزہ یا دو چشمیاں، ہم نون کی آواز کو جلدی ادا کریں گے. ہم نون کی آواز کو جلدی ادا کریں. میں نے آپ کو اظہار کیا جو ہے
اس کا پیج پڑھ کے بتایا تھا، اور اس کے بعد جو اس کا وہ بھی بھیجایا تھا، اس کا قاعدہ بھی پورا بھیجایا تھا، اظہار۔ یہ آپ نے دیکھا کہ یہ اظہار کا جو قاعدہ ہے، نون ساکن اور تن کا قاعدہ نمبر 1، یہ ہم نے کل پورا اوپر کا حصہ بھی پڑھا تھا، نیچے کا حصہ بھی پڑھا تھا۔ اس میں ہم نے پڑھا بھی تھا اور قاعدہ بھی بولا تھا۔ کیسا بولا تھا؟ طیرن ابابیل، تنوین کا اظہار حلقی حرف حمزہ، نارن حامیہ، تنوین کا اظہار حلقی حرف ہا، لمن خشیہ، نون ساکن کا اظہار حلقی حرف خا۔ جب بھی نون کے بعد حرف حلقی آئیں گا، نون کو جلدی ادا کر دیں، ہے نا؟ میں جیسا میں پڑھ رہا ہوں، من غیرہ، کیوں؟ نون ساکن کے بعد غین ہے، غین حلقی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ نون ساکن کا اظہار حلقی ہو رہا ہے۔ یومئذ علیہا، تنوین کے بعد عین آ گیا، اسی لیے میں کیا کرا، تنوین کے نون کو جلدی پڑھا۔ یومئذ علیہا، تنوین کا اظہار حلقی حرف عین، منہ خطابا، نون ساکن کا اظہار حلقی حرف دو چشمی ہا، من عین آنیتن، نون ساکن کا اظہار حلقی حرف عین، اس کے بعد تنوین کا اظہار حلقی حرف حمزہ، دو اظہار ہے اس کے اندر۔ اس کے بعد کفون احد، تنوین کا اظہار حلقی حرف حمزہ، آپ دیکھ رہے ہیں نا۔ نیچے کا حصہ بھی بتا دیتا ہوں، فمن افیا، نون ساکن کا اظہار حلقی حرف عین، جب بھی تنوین کے بعد آپ قرآن پڑھتے وقت میں جب بھی نون ساکن آئیں گا یا تنوین آئیں گے، آپ رک جانا، نہیں پڑھنا، پہلے رک کے کیا کرنا، دیکھنا آگے کون سا حرف ہے، نون ساکن اور تنوین کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے۔ اگر وہ حروف حلقی میں سے ہے، یعنی وہ 6 حرفوں میں سے ہے، تو نون کو آواز کو جلدی پڑھنا، نون ساکن کو بھی اور تنوین کو بھی۔ تو یہ کام قرآن پڑھتے وقت میں ہر نون ساکن کے بعد کرنا ہے، ہر تنوین کے بعد آپ کو کرنا ہے۔ یہاں پر اس کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے نا۔ من عقیہ، نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، یہ حروف حلقی ہے، یہاں پہ اظہار حلقی ہو رہا ہے، ہم نون کو جلدی پڑھ رہے ہیں۔ من اذنا، یہاں پہ بھی جو ہے حمزہ ہے، نون ساکن کا اظہار حلقی حرف حمزہ ہے۔ کتاب حکیم، تنوین کے بعد حرف ہا ہے، کتاب جلدی پڑھیں، کیوں؟ ہا ہے آگے۔ عذاب غلیظ، تنوین کے بعد غین ہے، تنوین کا اظہار حلقی حرف غین۔ اس کے بعد حاسد اذا حسد، حاسد اذا حسد، تنوین کے بعد حمزہ ہے، الف کے نیچے زیر ہے، تو یہ بھی اظہار حلقی ہوا، جلدی پڑھے، ہے نا۔ یہ آپ کو میں پورے جو ہے اظہار حلقی کی مثالیں بتایا، اس میں تنوین بھی مکس تھی اور جو ہے وہ بھی مکس تھا، کیا بولتے ہیں، تنوین اور نون ساکن اور تنوین دونوں مکس تھے اس میں۔ لیکن ہم جو ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں، اس میں جو ہے نون ساکن کے مثالیں الگ ہے، یہ اظہار کی مثالیں ہیں، دوسری کتاب میں سے بتا رہا ہوں۔ اس میں کیا کرا انہیں، اس میں کیا کرا، اس میں دیکھیں نون ساکن کے حرف، اور اس میں یہاں پہ ہے نون ساکن کے 4 حرف کی مثال یہاں پہ کرایا انہیں، 6 میں سے 4 کی یہاں پہ کرایا اور 2 کی یہاں پہ کرایا، عین غین کی۔ پھر اس کے بعد تنوین شروع کرا، رسول امین، پھر پورے 6 حرف ہے نیچے تک، پہلے حمزہ ہے، پھر 2 چشمیاں ہے، پھر نیچے آئیں گے تو ہا ہے، خا ہے، عین ہے، غین ہے۔ یہ پورے نون ساکن کے بعد 6 حرف کی پریکٹس کرایا، تنوین کے بعد 6 حرف کی پریکٹس، یہ کل ہم پڑھے کلاس میں، آپ لوگ پڑھ کے سنائے، آخر میں گئے تک بھی آپ پڑھے، آپ لوگ بہت اچھا پڑھے۔ اور جو ہے کیسا، من عملہ، نون ساکن کا اظہار حلقی، من غفور، نون ساکن کا اظہار حلقی حرف غین، رسول امین، تنوین کا اظہار حلقی حرف حمزہ، خرن ہم، تنوین کا اظہار حلقی حرف 2 چشمیہ، وہ پورے وہی، پھر نیچے جو ہے اسی حرف کے جو ہے تفصیل ہے نا۔ نیچے کے بلاک میں آ جائیں گے ہم، یہ نیچے کا بلاک ہے۔ شیئن حتی، تنوین کا اظہار حلقی حرف ہا، ثیابن قدرا، تنوین کا اظہار حلقی حرف خا، سلام علیکم، تنوین کا اظہار حلقی حرف عین،
अजरुन गैरु, तनवीन का इजहार हल्की हर्फ गैन। अब नीचे एक एक हर्फ के चार चार मिसालें हैं, वही सेम हर्फ के हैं। ये आप घर में प्रैक्टिस करे होंगे, मैं आपको वॉइस मैसेज भी भेजा था, ये दोनों पेज भी भेजा था, आप लोग सब पढ़ के तैयारी करके आए होंगे, माशाल्लाह, वेरी गुड। आज क्या करिए आप, ये लेसन आपको थोड़ा डिफिकल्ट दिखेगा, डिफिकल्ट दिखा तो क्या करना, मेरे से पूछना सीखना कैसा भी, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, उसके बाद सब आसान है, सब आसान है। इसमें क्या हो रहा, कल 50 है तो आज लोग 40 हो जा रहे, समझ में नहीं आया तो छोड़ के चले जा रहे। कल 40 थे आज 35 हो गए, अब 35 थे कल 30 हो गए। अभी कोर्स खत्म नहीं हुआ, लोग खत्म हो जा रहे, स्टूडेंट्स खत्म हो जा रहे। अरे पूरा कोर्स खत्म हुए तक लगे रहना और कंसिस्टेंसी रहना, लगा पाबंदी, रेगुलरिटी भी रहना, अटेंडेंस भी अच्छी रहना, सीखने का जोश भी रहना। कुरान सीख रहे हैं तो आपको पूरा सही पढ़ने के बारे में सीख रहे हैं हम लोग, है ना। और आप कोर्स ज्वाइन करें, आप आधा रास्ता आके आप छोड़ के चले गए, अच्छा नहीं है। तो आप पूरा करिए कोर्स, और अगर कहीं मुश्किल है तो आप पूछिए, मैं समझाऊंगा। तो आप देखेंगे बहुत इजी है, जब भी नून साकिन और तनवीन के बाद आने वाला हर्फ अगर हल्की रहेगा कोई, आप उसको जल्दी पढ़ देना, कोई मसला ही नहीं है इसमें, बहुत इजी है। तो ठीक है, अगर किसी को इजहार हल्की समझ में नहीं आया, नून साकिन और तनवीन के बाद जो हुरूफ हल्के आ रहे हैं वो समझ में नहीं आए, हाँ, तो मेरे से पूछना, मैं एक बार और रिपीट करूंगा। किसी को समझ में नहीं आया तो पूछिए, मैं एक बार रिपीट करूंगा, फिर मैं अगला फायदा जो है इसका इदगाम वो पढ़ाऊंगा। पहले आप लोगों को मैं पूछ रहा हूं कि अगर किसी को भी कोई डिफिकल्ट है तो आप मेरे से बात करें, पूछे। कोई नहीं है, किसी को सबको समझ में आ गया? अल्हम्दुलिल्लाह सर, सबको समझ में आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, चले, बड़ी खुशी की बात है। हम क्या करेंगे, कल मैंने कहीं पे वो देखा था यूट्यूब पे, वो बोल रहा था कि अगर एक ही कलिमे में ये नून साकिन या तनवीन होगा तो उसमें तो ये इज़हार नहीं होगा, लेकिन इसकी नहीं, जो इज़हार एक कलमे में भी होगा और दो कलमे में भी होगा। अगर एक ही कलमे में नून साकिन और हुरूफ हल्के आएंगे तो भी इज़हार होगा, दो कलमे में आएंगे तो भी इज़हार होगा। लाजिम नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ हल्के आएंगे, इज़हार होगा। सही है, राइट सर। हाँ, ये तो हम क्या करें, हम जो है ये हुरूफ हल्की पढ़ लिए, ये हम क्या करें, ये पहला कायदा पढ़ लिए, ये पहला कायदा पढ़ लिए, इज़हार हल्की वाला। उसके कितने हर्फ थे? 6 हर्फ थे, उसके 6 हर्फ थे। अब हम जो कायदा पढ़ने जा रहे हैं, उसके जो है उसके भी 6 हर्फ है, उसके भी 6 हर्फ है, उसके भी इत्तेफाक से 6 हर्फ है, इत्तेफाक से, है ना, उसके भी 6 हर्फ है ना। और इदगाम बोलते हैं सख्ती से मिलाने को, एक हर्फ को दूसरे हर्फ में सख्ती से मिलाने को इदगाम बोलते हैं। एक हर्फ को, यानी कैसा, एक तरफ तो हमारा फिक्स है नून साकिन और तनवीन, नून साकिन और तनवीन के बाद इदगाम के 6 हर्फ आएंगे। इदगाम के 6 हर्फ कौन से हैं? यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। और इसके मजमुए का नाम है यरमलून। ये बस इतना याद रख लेना है, यरमलून। ये याद रख लिए तो क्या होता है, आप लोगों को जो है मुश्किल नहीं होती, ये याद रख लिए तो जो है इदगाम के 6 हर्फ याद आ जाते। हुरूफ हल्की में मुश्किल इसलिए नहीं हुई, हम मखारिज पढ़ के आए थे, हमको हुरूफ हल्की याद हो गए थे, ऊपर के हलक के 2, बीच के हलक के 2, नीचे के 2, वो बोलते याद हो गए थे। तो हुरूफ हल्की इजहार के 6 हर्फ हमको पहले से ही ज़बानी याद थे, तो हमारे को पहले कायदे में मुश्किल नहीं हुई। अब क्या होगा, इदगाम के 6 हर्फ क्या है? या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। उसके मजमुए का नाम क्या है? यरमलून। आप यरमलून याद रख लो, पूरे 6 याद हो गया, यरमलून पूरे 6 याद हो। अब क्या है, अब मैं इदगाम में आगे की तरफ जा रहा हूँ।
ادغام دو قسم کا ہے. ادغام کی دو قسمیں ہیں. ادغام کی پہلی قسم کا نام ہے ادغام مع الغنہ. ادغام مع الغنہ. مع الغنہ کے معنی ہے غنے کے ساتھ ادغام. ادغام وت غنہ. ادغام وت غنہ. ادغام کی کسی کا مائک کھلا ہے، بند کریں. کسی کا مائک کھلا ہے. منظور احمد ڈار صاحب، منظور احمد ڈار صاحب مائک بند کریں. منظور احمد ڈار. بس ہو گیا. مائک کھلا رکھے تو آپ کے گھر کے ہوا بات چیت سنے آ رہی نا سب کو. تو کیا ہوا، ادغام کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے ادغام مع الغنہ اور دوسری قسم ہے ادغام بلا غنہ. یعنی اس میں غنہ نہیں ہے، یہ اس میں جو ہے یہ بغیر غننے والا ہے. ایک ادغام غننے والا ہے، ایک ادغام بغیر غننے والا ہے. ادغام بلا غنہ. بلا غنہ مطلب وداؤٹ غنہ. ادغام وداؤٹ غنہ. ایک ادغام وت غنہ، ایک ادغام وداؤٹ غنہ. ماں کے معنی ہے وت. عربی میں ماں بولے تو وت ہے نا. اللہ ہمارے ساتھ ہے، مع اللہ، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ادغام مع الغنہ غننے کے ساتھ ادغام. ادغام بلا غنہ بغیر غننے کے بغیر ادغام. ٹھیک ہے نا. اب یہ 6 حرف میں سے ادغام مع الغنہ کے 4 حرف ہے. ادغام مع الغنہ کے 4 حرف ہے یا، واو، میم، نون. اور اس کے مجموعے کا نام ہے یومین. آپ یہ 4 حرف، یہ غننے والے 4 حرف ہیں. 6 میں سے 4 یہاں چلے گئے. یومین، یا، واو، میم، نون. یہ 4 حرفوں میں جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ 4 حرف آئیں گے ہم غننے کے ساتھ ادغام کریں گے. سختی سے ملائیں گے. ادغام کس کو بولتے ہیں؟ سختی سے ملا. سختی سے ملا کے غننے کے ساتھ پڑھنا. ادغام مع الغنہ بولے تو سختی سے ملا کے غننے کے ساتھ پڑھنا ہے نا. 4 حرف ہے یا، واو، میم، نون. اور جو 2 حرف ہے لام اور را، یہ جو ہے اس میں غنہ نہیں ہوتا. یہ اس کو سختی سے ملا کے بغیر غننے کے پڑھیں گے. اس کو نون ساکن اور تنوین کو اس کے اندر سختی سے ملا کے لام اور را میں بغیر غننے کے پڑھیں گے اس کو. لیکن اوپر کے جو 4 حرف ہے یا، واو، میم، نون، جب وہ پڑھیں گے نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ 4 حرف آئیں گے ہم سختی سے ملا کے غننے کے ساتھ پڑھیں گے. کیسا سختی سے ملا کے؟ کیسا آپ کو میں بتا دوں. میں آپ کو مثال دوں گا، پہلے پھر بھی بتا دے رہا ہوں. یہ نون ساکن آ گیا ہے نا. ہاں، یہ نون پہ، سوری، یہ نون پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نون ساکن ہے. نون ساکن ہوتے ہی آپ رک جانا اور دیکھنا آگے حرف کون سا ہے. آگے حرف یا ہے. آگے کا جو حرف یا ہے وہ یہ ادغام مع الغنہ کا ہے. یومین کا یا ہے وہ، یعنی غننے کے ساتھ ادغام ہوگا اس کے اندر. کیسا ہوگا غننے کے ساتھ؟ سختی سے ملا کے غننے کے ساتھ کیسا پڑھیں گے؟ نون کو لے کے یا میں گھس جائیں گے. آدھا نون رہنا، آدھا یا رہنا، اور غنہ کرنا اور پھر پڑھنا اس کو. کیسا؟ جب بھی قرآن میں نون ساکن یا تنوین کے بعد یا آئیں گا کیسا پڑھنا؟ نون کو لے کے یا میں گھس جانا اور غننے سے پڑھنا. کیسا؟ من یقولو، من یقولو، میں، آدھا نون آدھا یا، گھس جانا یا کے اندر، غنہ کرنا، پڑھنا ہے نا. تجدید بھی ڈال دیتا ہوں نے ملانے کے واسطے ناظرے والوں کے لیے، جو تجوید جن کو نہیں آتی ان کی سہولت کے خاطر اس میں تجدید بھی ڈال دیتا قرآن میں ہے نا. من یقولو، من یقولو، دیکھ لیا نا. اچھا، دوسرا حرف یہ بھی، اس میں بھی نون ساکن رہتا ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ مد اصلی کے بعد حمزہ آ گیا اس لیے مد بھی آ جاتا ہے.
अब ये नून को लेके वाव में जाना है आप, यहाँ वाव पे उन्हें, यहाँ वाव पे भी तस्दीद डाल देते हो लोग ताकि आपको पढ़ने में मुश्किल नहीं होना बोल के, है ना। कैसा पढ़ेंगे, म्याऊं, नून को लेके वाव में घुस जाना, आधा नून आधा वाव, गुन्ना करना। म्याऊं गोल मुंह कर दे तो वाव अच्छा निकलता। म्याऊं, म्याऊं, इसको बोलते हैं नून साकिन का इदगाम माल गुन्ना, गुन्ने के साथ इदगाम करें, सख्ती से मिला है। क्योंकि आप देख रहे हैं नून साकिन और तनवीन के बाद ये 4 हर्फ में से कोई भी हर्फ आएगा, या वाव मीम नून में से, आप गुन्ना करके इदगाम करेंगे और गुन्ने के साथ पढ़ेंगे, अच्छा इदगाम सॉलिड करेंगे और गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। मैं आपको मिसाल बताया या की, मैं आपको मिसाल बताया है ना वाव की, मैं आपको मीम की मिसाल बताता हूँ, है ना। इस पे भी तशरीह डाल देता हूँ, है ना। मिम्मा इन क्योंकि बाद में मद आ रहा है ना, नून कहाँ चलेगा, मीम के अंदर है, सख्ती से अंदर चलेगा, नून नहीं पड़ेगा, मीम का गुन्ना हो रहा खाली। मिम्मा इन, मीम का ही गुन्ना होगा, नून उसके अंदर है, सख्ती से आप सख्ती से मिलाए तो उसके अंदर जाके गायब हो गया। मिम्मा इन, है ना, वैसी नून भी है ना, ये नून साकिन है। फिर उसके बाद क्या आ गया, नून आ गया। मिन निअमतिन, मिन निअमतिन, है ना, मिन नून का गुन्ना करिए, नून 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 के अंदर घुस गया, नून का गुन्ना होगा। मिन निअमतिन, ऊपर वाले में मीम का गुन्ना होगा, मीम का, नीचे वाले में नून का गुन्ना होगा, क्योंकि नून साकिन के बाद मीम आ रहा, या नून साकिन के बाद नून आ रहा, नून साकिन के बाद वाव आ रहा, या आ रहा, ये चारों हरफ है, या वाव मीम नून, यौमिन, है ना। मन यकूलु म्यावराइहिम मिम्माइन मिन निअमतिन, ये इदगाम माल गुन्ना के 4 हर्फ की मिसालें हैं। इदगाम माल गुन्ना के 4 हर्फ है यौमिन, आप देखिए, है ना, इदगाम माल गुन्ना के कितने हर्फ है, 4 हर्फ है, या वाव मीम नून, उसके मजमूए का नाम क्या है, यौमिन। जब भी नून साकिन और तनवीन के बाद, क्योंकि हमेशा आप देखेंगे नून साकिन और तनवीन के बाद आएंगे हर्फ, जैसा हुरूफ हल्की में भी नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ हल्के आ रहे थे, अब नून साकिन और तनवीन के बाद यौमिन में से कुछ भी आएगा, यौमिन में से वो 4 हर्फ आएंगे, गुन्ने के साथ पढ़ेंगे, 2 हर्फ वो बगैर गुन्ने के आएंगे, गुन्ना नहीं करेंगे, इदगाम करेंगे, इदगाम बिला गुन्ना है वहां पे, यहाँ पे क्या है, इदगाम माल गुन्ना। तो ये मैं आज आपको क्या कहा, ये जो अहकाम नून साकिन का कायदा नंबर 2 इदगाम है, जिसके 6 हर्फ है, या रा मीम लाम वाव नून, जिसके मजमूए का नाम यरमलून है, उसको इदगाम के दो वो है, 2 पार्ट है, इदगाम की 2 किस्में हैं, एक इदगाम माल गुन्ना, इदगाम बिला गुन्ना। इदगाम माल गुन्ना के 6 में से 4 हर्फ है, यौमिन, या वाव मीम नून, और जो बच गए सो लाम और रा, है ना, वो जो है बिला होने के हैं, वो हम कल पढ़ेंगे, है ना, हम बाद में पढ़ेंगे उसको, समझ गए ना आप। तो ये आप अब हम क्या करेंगे, आज ये 4 हरफों की प्रैक्टिस करेंगे, ये या वाव मीम नून की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको यहाँ इदगाम के बारे में आपको कुछ वजाहत है, कोई आपको पूछना है, कोई डाउट है, आप बात करिए। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम, नासिर खान साहब। ये गुन्ना करते टाइम में इसको 2 हरकत से करना है। हाँ, गुन्ना 2 से 3 हरकत लंबा करना। हाँ, ये पूछ रहे थे। हाँ, मैं कर रहा हूँ ना, देखो आप, मैं यकूलु, नून के या में गया गुन्ना कर, म्याऊं वराइहिम,
गुन्ना करा, मिम्माइन गुन्ना करा, मिन निअमतिन, उन्होंने तजदीद भी डाल देते, आप नहीं छोड़ना बल्कि नाज़िर वालों के लिए डाले वो, लेकिन हम तजदीद वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसको, हमको जरूरत नहीं है तजदीद की हो, हम नून साकिन के बाद वाव आया, या आया, मीम आया, नून आया तो हम खुद कर देते हैं, तो हमको मालूम है, हम पढ़े कायदा, लेकिन नाजरे वाले नहीं पढ़ते, इसलिए क्या करते हैं, उन्होंने तजदीद डाल देते, तजदीद डाले तो उन्होंने तो नहीं बगैर मिला के पढ़ेंगे बोल तजदीद डाल देते, मिला के पढ़ना सख्ती से बोल के। अगर आप लोगों को अच्छा समझ में आ गया ये इदगाम, तो मैं इसकी प्रैक्टिस बताता हूँ, बहुत आसान हो जाती, पढ़ लिए तो आपको समझ में आता, लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं सर ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे सर। सर प्रैक्टिस करेंगे। जज़ाकल्लाह। मैं पहली प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये है, ये उसने प्रैक्टिस करा रहा उसमें एक एक हर्फ की। तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ यरमलून में से या वाव मीम नून यौमिन दूसरे कलमे में आवे तो गुन्ने के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, समझ गए ना, गुन्ने के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, है ना, इसको बोलते हैं इदगाम माल गुन्ना, इदगाम माल गुन्ना। उसको इदगाम नाकिस भी बोलते हैं, वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, वो कोई मसला नहीं है, वही बहुत ईजी है वो। इसको बोलते हैं इदगाम माल गुन्ना। क्या इंग्लिश जो लोगों को उर्दू नहीं आती उसने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इफ आफ्टर नून साकिन और तनवीन फ्रॉम अमंग्स्ट द लेटर्स ऑफ यरमलून, वो 6 हर्फ में से कोई 4 हर्फ आएंगे, एनी ऑफ द लेटर्स ऑफ यौमिन या वाव मीम नून जो गुनने वाले हैं appears, then the noon sakin or tanween will be incorporated into the letter following it and will be, यानी नून को या से वाव से मिला हो रहा, incorporate करो letters following it and will be read with गुना, मश्क इदगाम माल गुना। क्या बोल रहा, मश्क इदगाम माल गुना, यानी पहला कायदा जो है इदगाम का, इदगाम माल गुना, गुन्ने के साथ इदगाम, इदगाम विथ गुना। कितने हर्फ है, 4, पहले या की मिसालें दिया, फिर मीम की मिसालें दिया, सॉरी वाव की मिसालें दिया, फिर मीम की मिसालें दिया, फिर आखिरी में नून की मिसालें दिया, है? और बाजू लिख भी दिया इदगाम, इदगाम या, इदगाम वाव, इदगाम मीम, इदगाम नून, और उसके एक 4-4, 5-5, 6-6 हर्फ प्रैक्टिस करा रहा था। कैसा प्रैक्टिस करेंगे आप इदगाम माल गुन्ना की, कैसा करेंगे मैं बता रहा हूँ। पहले या की, या में पहले क्या है, नून साकिन के बाद या है, उल्ला क्या करे, या के ऊपर तजदीद डाल दिया मिलाने के वास्ते, है ना, मिला के पढ़ने के लिए, नाजरे वालों के लिए कोई बात नहीं। हम कैसा पढ़ेंगे, नून को लेके या में जाएंगे, गुन्ना करेंगे, आई आई, आधा नून आधा या का आवाज, आई यू आई यू ता। आप बोलेंगे खायदा, मैं बोला खायदे बोलो, आप बोलेंगे नून साकिन का इदगाम माल गुन्ना हर्फ या, नून साकिन का इदगाम माल गुन्ना हर्फ या। आगे के खायदे बाद में बोलेंगे, अभी नहीं बोलना पूरे, जब हम अच्छा सीख लिया। आगे हमजे साकिना का झटका है, ता पे खड़ा जबर है, 2 रकत, वो तो हम पढ़ लेके आए, वो तो करेंगे ही करेंगे, सही पढ़ना मगर सब चीज। दूसरा मैं यामल, मैं यामल बगैर गुन्ने के नहीं पढ़ना, एक खास बात है ये, नून के बाद या आएगा बगैर, मैं यामल नहीं, अब तक जैसा पढ़ते थे वैसा नहीं, मैं हम लोग अब तक कैसा पढ़ते थे, मैं यामल नहीं, मैं यामल, नून साकिन का इदगाम माल गुन्ना हर्फ या। मी यौमिन, मी नून को लेके या में चले गए, मी यौमिन, नून साकिन का इदगाम माल गुन्ना हर्फ या, यौमिन, यौमिन लीन है, वो कोई बात नहीं, हो गया। नीचे की लाइन, मैं यक़ूलु, नून साकिन का इदगाम माल गुन्ना हर्फ या, वुजूहुन यौमइज़िन, तनवीन का इदगाम माल गुन्ना हर्फ या। पहले नून साकिन के पढ़ रहे थे हम, नून साकिन तासुब पहले, अब इसमें यहाँ क्या है, तनवीन के बाद वो आ गया, या आ गया, वहां पे भी वैसे पढ़ना, क्योंकि तनवीन के अंदर भी नून है, वुजूहुन है ना, नून है उसमें, वुजूहुन, वो पेश को लेके या में घुस जाना, वुजूहा के ऊपर जो 2 पेश है उसमें क्या, एक पेश लेके या में घुस जाना, वुजूहुन यौमइज़िन।
ऐन यशाअ, ऐन नून को लेके या में चले गया, गुन्ना करें, ऐन यशाअ, नून साकिन का इदगाम माल गुन्ना हरफिया, और उससे पहले वाला क्या था, तनवीन का इदगाम माल गुन्ना हरफिया। ये मिसालें किसकी थी, या की थी। कितने हर्फ है इदगाम माल गुन्ना के, 4। यौमिन, या वाव मीम नून, या की मिसालें पढ़ ली आप, अब वाव की मिसालें पढ़ेंगे। लिखा हुआ है वहां पे इदगाम वाव, है ना, आपको दिख रहा है माशाल्लाह क्लियर, बड़ा बड़ा, देखो मैं बड़ा कर दिया उसको, है ना। पहली मिसाल पढ़ रहा हूँ, इलाहं वाहिदा, है ना, इलाहं, गोल मुंह करना वाव के लिए, मैं कैसा पढ़ बोला, वाव का मखरज क्या है, होठों को गोल करके मुंह से दूर ले आके पढ़ना, सही मखरज है वाव का। इलाहं वाहिदा, नाक में से आवाज आना, गुन्ना बोलते ही नाक में से आवाज आना, इलाहं वाहिदा, तनवीन का इदगाम माल गुन्ना हर्फ वाव। रहीमुन वदूदुन, तनवीन का इदगाम माल गुन्ना हर्फ वाव। इयं वहबत, नून साकिन का इदगाम माल गुन्ना हर्फ वाव। मियां वराइहिम, नून साकिन का इदगाम माल गुन्ना हर्फ वाव। जन्नातियं वउयून, तनवीन का इदगाम माल गुन्ना हर्फ वाव, है ना। मौइदा, मौइदा, नून साकिन का इदगाम माल गुन्ना हर्फ वाव। सही है ना, पूरे मालूम हो गए हमारे। ये कौन से हर्फ का, ये वाव के मिसालें थी। नून साकिन के बाद वाव आ रहा था, तनवीन के बाद भी वाव आ रहा, हम पढ़ के बता दिया आपको, गुन्ने के साथ पढ़ना है, क्योंकि ये इदगाम माल गुन्ना है। ये इदगाम माल गुन्ना के 4 हर्फ की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, या वाव मीम नून। हम या पढ़ लिए, वाव पढ़ लिए, नेक्स्ट मीम है। मीम में ये बता रहा हूं मैं, मीम इदगाम मीम, इसकी मिसालें हैं यहाँ पे तनवीन और नून साकिन के बाद कौन सा हर्फ आएगा, मीम आएगा। 4 हर्फों में से मीम तीसरा हर्फ है, यौ मिन मीम। रसूलुम मिनल्लाहि, रसूलुम मिनल्लाहि, तनवीन में जो नून था वो मीम में चलेगा, मीम का गुन्ना होगा। रसूलुम, दोनों होठों को सख्ती से पकड़ लेना, आवाज को नाक में लाना, गुन्ना अच्छा करना, पढ़ना। कैसा, रसूलुम मिनल्लाहि सिरातम मुस्तकीमा, सिरातम मुस्तकीमा, दोनों होठों को सख्ती से पकड़ के अच्छा गुन्ना करना नाक से। सही है। अमन, अमन, मीम का ही गुन्ना हो रहा, नून चलेगा मीम के अंदर, नून का आवाज ही नहीं निकाल रहा, नून नून सख्ती से घुस गया उसके अंदर, मिला दिए। खैरुम मिन, तनवीन का इदगाम माल गुन्ना हर्फ मीम। मिम मिस्लिही, सा को जबर लगा के पढ़िए, खड़ी करके 2 रकत, नून साकिन का इदगाम माल गुन्ना हर्फ मीम, है ना। मीम के मिसालें आसान है, होता मीम का गुन्ना करना है, कोई मुश्किल नहीं, आप लोग बहुत आसान है। ठीक है, आगे आखिरी है नून, यौमिन, या की पढ़ ली हम, वाव की पढ़ ली हम, मीम की पढ़ ली, अब नून की मिसालें पढ़ रहे हैं। नून की मिसालों में क्या लिखा उन्हें, इदगाम नून, इदगाम नून, इंग्लिश में भी लिखा। नून के बाद नून आ रहा, नून का गुन्ना करना है, उन्हें तजदीद डाल दिया आपकी सहूलत के खातिर, है ना। मिन नबिय्यिन, सीधा सीधा नाक में आवाज जाके अच्छा गुन्ना करना नून का। मिन नबिय्यिन नूरन नहदी मिन निअमतिन, खादी कैसा बोलेंगे, नून साकिन का इदगाम माल गुन्ना हर्फ नून, नून तनवीन का इदगाम माल गुन्ना हर्फ नून, नून साकिन का इदगाम माल गुन्ना हर्फ नून। नीचे की लाइन, लिमन नुरीदु, नून साकिन का इदगाम माल गुन्ना हर्फ नून। फमन नकसा, नून साकिन का इदगाम माल गुन्ना हर्फ नून। मिन नासिरीना, नून साकिन का इदगाम माल गुन्ना हर्फ नून, है ना। नून साकिन है तो नून साकिन का बोलना, तनवीन है तो तनवीन का बोलना, वो उसके बाद ये वो बोलने जाएंगे तो सब कंफ्यूज हो जाते हैं।
पहले देख लेना, नून साकिन है, नून साकिन का, उसके बाद खादे का नाम बोलना, इदगाम माल गुन्ना, कोई मुश्किल नहीं है। इदगाम माल गुन्ना यहाँ लिखा हुआ है ना, ऊपर लिखा हुआ है मश्क इदगाम माल गुन्ना। आप देख के भी बोल सकते, देख के भी बोल सकते, ऊपर इदगाम माल गुन्ना लिखा हुआ भी है। अब ये पेज मैं खुला रख रहा हूँ, ये पूरे पूरे मिसालें हैं इसमें। आपको मैं 15 मिनट देता हूँ, पूरे लोग प्रैक्टिस करिए पूरे। मैं आके एक एक से पूरे पढ़ाऊंगा। मैं जा रहा हूँ, इफ्तार करके आऊंगा, 10 मिनट्स के अंदर ही आ जाऊंगा। बल्कि आप लोग जो है प्रैक्टिस करके ये चारों हरफों को रेडी कर देना। मैं आते ही पढ़ाना शुरू करूँ, इसमें से भी पढ़ाऊंगा, आके दूसरी किताब में से भी पढ़ाऊंगा। और आज हम इदगाम माल गुन्ना के चारों हरफों की प्रैक्टिस खत्म कर देंगे इंशाल्लाह, और सब पढ़ के बताएंगे अच्छे तरीके से मेरे को, है ना। कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे अच्छा कर सकते हैं आप इदगाम। हम जो है नून साकिन और तनवीन का इज़हार हल्की अच्छा पढ़े माशाल्लाह कल। आज हम नून साकिन और तनवीन का इदगाम माल गुन्ना भी माल गुन्ना पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ये पेज आप प्रैक्टिस करिए, मैं खुला रख रहा हूँ। ये पूरा, इसमें चारों हरफों के मिसालें आपके सामने है, आप क्लियर है, आपको दिख रहा है। आप क्या है, कौन सी मिसालें हैं? इदगाम माल गुन्ना। हाँ, नून साकिन है तो नून साकिन का इदगाम बोलना, तनवीन है तो तनवीन का इदगाम बोलना। हमारे आबिद शख्स साहब, यू आर देयर? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी सर। वालेकुम सलाम। अब पहले सबको प्रैक्टिस करने दो 5-10 मिनट, है ना। जी सर। उसके बाद आप करने दो 10-15 मिनट करने दो। अगर आप उसके बाद पढ़ाना शुरू करना चाहते तो पढ़ाना शुरू करिए, मैं आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम। ये कब बंद हो गया ये? सर जब आप गए थे 1 मिनट बाद, कितनी देर बाद? 10-15 मिनट 15 मिनट हो गए। हमने चैट पे भी लिखा था आपको। नहीं, खैर मैं तो नमाज पढ़ रहा था। अच्छा चलिए, चले कोई बात नहीं, अब जो गया सो गया। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, थोड़ा करेंगे। कायदा लेके प्रैक्टिस कर लिया सर। हाँ, कायदा लेके प्रैक्टिस, वेरी गुड। क्योंकि हर एक के हाथ में हार्ड कॉपी रखो बोला था भाई। जिनके पास हाथ में हार्ड कॉपी है वो लोग पढ़ सकते हैं, है ना। पेज नंबर ऊपर दिया हुआ है 42, निकाले और पढ़ लिए। चलो कोई बात नहीं जी। इसमें ये पेज पे हमारे पास, ये पेज पे जो है वो है, एक मिनट, इसमें अगर वो है तो वो भी बताता हूँ। तो ये जो मिसालें ये पेज में बताई गई हैं, इदगाम माल गुन्ना की प्रैक्टिस है। हम नून साकिन और तनवीन के बाद ये 4 हर्फ आएंगे तो सख्ती से मिला के गुन्ने के साथ पढ़ेंगे, है ना। मैं पढ़ के आपको बताया। अब आप लोग कौन पढ़ना चाह रहे हैं? हारून हफीज साहब सबसे पहले हाथ उठाए। आप जो है एक लाइन या की पढ़िए, एक लाइन वाव की पढ़िए, एक लाइन मीम की पढ़िए, एक लाइन नून की पढ़िए। बिस्मिल्लाह, शुरू करिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अय्युता मन यअमल मिन यौमिन इलाहन वाहिदा। नहीं, गुन्ना नहीं, गुन्ना कहीं भी नहीं हो रहा आपका। आप सही नहीं पढ़ रहे। लाहू वाहिदा पहले जैसा पढ़ते थे वैसे ही पढ़ रहे। जी गुन्ना का है वाहिदा। नहीं, कैसे कर रहे हो? तो गुन्ना करना किसको बोलते? गुन्ना करना किसको बोलते मालूम आपको? इलाहन वाहिदा। हाँ, फिर आप ऐसा क्यों नहीं पढ़ रहे जब? जी अय्युता रहीमुन वदूद वदूदुन वहबत। नहीं, देखो, इयौं वहबत, अच्छा लंबा करो।
آپ یہاں پہ لمبا کریں گے تو بعد میں قرآن پڑھتے وقت میں تھوڑا تو پڑھیں گے، نہیں تو وہاں پہ بالکل گھر میں پڑھیں گے تو غنہ کھا جائیں گے آپ لوگ. جی جی. رسول من اللہ صراطا مستقیما من نبی من نورا نبی نورا نهدی من نہدی نعمة من نعمت نعمتن پڑھیے پورا. من نعمة. ماشاء اللہ، ویری گڈ. مسیب احمد. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام. سیکنڈ لائن پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من یقول سر مائک کس کا مائک کھلا ہے بھائی؟ کس کا مائک؟ گور فاروق صاحب مائک بند کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یقول وجوہ یومئذ ان یشاء ایک منٹ. وجوہ ہی نہیں ہے وہ وجوہ یوم. سر وجوہ یومئذ ان یشاء من ورائہم جنات وعیون موئد امن خیر من مثلہ لمن نرید فمن نکث من ناصرین. بہت خوب. گور فاروق صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. مائک کو کھلا رکھے تھے. سر غلطی سے ہو گیا. پڑھیے آپ اوپر کی لائن پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان یؤتا من یعمل من یوم الہا واحدا رحیم ودود ان وہبت رسول من اللہ صراطا مستقیما من نبی نورا نہدی من نعمت. بہت خوب، بہت اچھا. ناصر خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اوپر کی لائن پڑھیے. ہاریزنٹل پڑھنا ہے ورٹیکل میں پڑھنا ہے مول صاحب؟ کیا بولے آپ؟ آڑے میں پڑھنا ہے کہ کھڑے میں اوپر سے نیچے تک پڑھنا ہے؟ یہ اتنے لوگ جب سے پڑھے کیسا پڑھے؟ آپ سو رہے تھے، جگ رہے تھے، سن رہے تھے، نہیں سن رہے تھے؟ پڑھا نا. میں بولا اوپر کی ایک لائن اوپر سب کے، یا کی اوپر کی لائن پڑھیے، واو کی اوپر کی لائن پڑھیے، میم کی اوپر کی لائن پڑھیے، نون کی اوپر کی لائن پڑھیے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان یؤتا من یقول الہا واحدا من ورائہم. میں آپ کو بولا اوپر کی لائن، ہر یا کی اوپر کی لائن پڑھو. بولا اوپر کی لائن پوری اوپر کی لائن، رائٹ سے لیفٹ کی. اچھا نون صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
أن يؤتى من يعمل من يوم من يقول अरे आप وجوه सिर्फ ऊपर की लाइन पढ़ो यार, अब वाव की ऊपर की लाइन पढ़ो भाई. واو کے اوپر کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الہ واحدا رحیم ودودا ودودا نہیں ہے وہاں پہ, ودودا نہیں ہے وہاں پہ, ودودن. ودود إن وهب من ورائهم اوکے. شیخ ماجد, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر یا کی اوپر کی لائن, واو کی اوپر کی لائن, میم کے اوپر کی لائن, نون کے اوپر کی لائن پڑھیے. ٹھیک ہے سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایوتا ایک منٹ. یو تا حمزہ ساکنہ ہے وہاں پہ. جی سر. پھر جی بولے مگر آپ نہیں پڑھے نا, حمزہ ساکنہ کا جھٹکا نہیں دیا نا. ایوتا نہیں, جھٹکا نہیں دے رہے آپ. یو تا ایوتا من یعمل من یؤمن إليها واحدا رحيم ودود إن وهبت رسول من الله صراطا مستقيما من نبي نورا نهدي من نعمة. شیخ ماجد. سر پڑھا. بلقیس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یقول وجوہ یومئذ ان یشاء الہا واحدا رحیم. کیسا الہ واحد ہو گیا؟ آپ دوسری لائن پڑھ رہے تھے نا, سب جگہ کی دوسری لائن میں پڑھنا ہے نا. جی من ورائہم جنات وعیون موعد امن خیر من مثلہ لمن نريد فمن نقص من ناصرین. ماشاء اللہ. شوکت عزیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم اعوذ السلام. باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان یؤتا من یعمل من یوم الہا واحدا رحیم ودود إن وهبت رسول من الله صراطا مستقيما من نبي نور هدى من نعمة
माशाल्लाह। कमाल अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। पढ़िए सर आप, दूसरी लाइन पढ़िए सर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन यक़ूलु वुजूहुन यौमइज़िन अन यशा यशाअ अन यशाअ अन यशा यशा फिहिम जन्नातिन वउयून मौईद रसूलुम नहीं, दूसरी लाइन, दूसरी लाइन। सॉरी अम्मन खैरुम लिही लिमन नुरीद वमन नकफ़ मिनन्नासिरीन। ये जो मिसालें पढ़े कौन सी कई की मिसालें थी? ये इदगाम की मिसालें हैं सर। वाओ नहीं, या नहीं गलत बोले। इदगाम माल गुन्ना की मिसाल। मागुन्ना, जी इदगाम मागुन्ना की मिसालें। इदगाम माल गुन्ना। इदगाम मागुन्ना। हाँ, अब आप जो पढ़े उसके फायदे बोलो। मैं यखुलु, फायदा बोलिए। मैं यखुलु, मैं यखुलु सर, नून साकिन के बाद में नहीं, वैसा नहीं बोला मैं वैसा नहीं सिखाया। नून साकिन का इदगाम मागुन्ना हरफिया। हाँ, नून साकिन का इदगाम मागुन्ना हर्फ या है। हाँ, उसके बाजू का जो है सो तनवीन का इदगाम मागुन्ना हर्फ या है। उसके बाजू का नून साकिन का इदगाम मागुन्ना या है। तो वाव की दूसरी लाइन नून साकिन का इदगाम मागुन्ना वाव है। हर्फ वाव है। तनवीन का इदगाम मागुन्ना हर्फ वाव है। नून साकिन का इदगाम मागुन्ना वाव है। उसके बाद मीम की दूसरी लाइन में नून साकिन का इदगाम मागुन्ना हर्फ मीम है। खैरुन तनवीन के बाद तनवीन का इदगाम मागुन्ना हर्फ मीम है जी। नून साकिन का इदगाम मागुन्ना हर्फ मीम है। आखिरी लाइन के बाद आखिर में लिमन, नून साकिन के बाद नून साकिन का इदगाम मागुन्ना नून है। और नून साकिन का इदगाम मागुन्ना हर्फ मीम है, नून है। उसके बाद नून साकिन का इदगाम मागुन्ना नून है, नून का हर्फ। माशाल्लाह। मोहम्मद असलम साहब। अल्लाह ही बारिक फीक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अय्युता मन यअमल मिन यौमिन इला कायदे बोल के आगे बढ़िए। यूटी में नून साकिन का इदगाम माल गुना हरफ ये है। इस तरह नून मई यामल में नून साकिन का इदगाम माल गुना हरफ या इसमें भी है, और मी यौमिन में भी नून साकिन का इदगाम माल गुना हरफ ये है। मिन वरा, नहीं, आप पहली लाइन पढ़ रहे हैं। अच्छा हाँ सॉरी,
इलाहं वाहिदा नहीं सही नहीं पढ़े, रहीमुन सीधा नहीं, सही नहीं पढ़े इलाहं वाहिदा जी। रहीमुन वदूदुन पढ़ते ही खादा बोल दीजिए, पढ़ते ही खादा बोल दीजिए। इलाहं वाहिदा में तनवीन का इदगाम माल गुना हरूफ वाव है। रहीमुन में नहीं पढ़िए पढ़िए, अब उसको पढ़िए, अब इन वहबत रहीमुन को पढ़िए, रहीमुन को। रहीमुन वदूदुन, हाँ आप खादा बोलिए। हाँ उसमें तनवीन का इदगाम माल गुना हरूफ वाव है। हाँ अब आगे पढ़िए। इन वहबत रसूलुम नहीं नून साकिन का, नून साकिन का यहाँ पे है, नून साकिन का इदगाम माल गुन्ना हरूफ वाव है। अब जाइए आगे। रसूलुम मिनल्लाहि, तनवीन का इदगाम हरूफ मीम है। इदगाम माल गुना, माल गुना, हाँ इदगाम माल गुना हरूफ वाव है। हुरूफ मीम है भाई, हरूफ मीम। रसूलुम मिनल का बोल रहे ना भाई आप। रसूलुम मिनल्लाहि सिरातम मुस्तकीमा, तनवीन का इदगाम माल गुना हरूफ मीम है जी। नून की पहली लाइन मिन नबीयिन, इसमें नून साकिन का इदगाम माल गुना हरूफ नून है। नूरन नहदी, तनवीन का इदगाम माल गुना हरूफ नून। मिन निअमतिन, नून साकिन का इदगाम माल गुना हरूफ नून है। बहुत खूब, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। बशारत मुस्तफा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन यक़ूल, नून साकिन का इदगाम माल गुन्ना हर्फ या। वुजूही यौमइज़िन, तनवीन का इदगाम माल गुन्ना हर्फ या। अन यशा, नहीं गुन्ना कैसा करते हैं मालूम? यशा, वो आप गुन्ना ही नहीं कर रहे आप। यशा, नून साकिन का इदगाम माल गुन्ना हर्फ या। मिन वराइहिम, नून साकिन का इदगाम माल गुन्ना हर्फ वाव। जन्नातिन व उयूनिन, तनवीन का इदगाम माल गुन्ना हर्फ वाव। मौइदा, नून साकिन का इदगाम माल गुन्ना हर्फ वाव। अम्मन, नून साकिन का इदगाम माल गुन्ना हर्फ मीम। खैरुम मिन, तनवीन का इदगाम माल गुन्ना हर्फ मीम। मिम मिस्लिही, नून साकिन का इदगाम माल गुन्ना हर्फ मीम। अब बोर्ड नजर नहीं आते हैं जरा। लिम, बस हो गए। कहाँ हो गया यार? बस हो गए। लिमन, नहीं पढ़िए, नीचे नून का भी है ना, हटाइए ना, उंगली से स्क्रीन को हटाइए। हाँ सर हटा दिया। लिमन, नून की निकली, नून की पढ़िए आखिरी। लिमन नुरीदु, मीम साकिन का इदगाम गुना हर्फ नून। हमन नकसा, नून साकिन का इदगाम माल गुन्ना हर्फ नून। नासिरीन, नून साकिन का इदगाम माल गुन्ना हर्फ नून। अब खत्म हो गया बोले ना, उंगली से हटा तो निकला ना नीचे से। हाँ निकल गया। देखना ना पेज हुआ क्या नहीं हुआ, चेक करना ना। मोहम्मद असलम साहब, शौकत अजीज साहब पढ़ लिया? अस्सलाम वालेकुम, मैंने पढ़ा है। पढ़ लिया, ओके। मोहम्मद असलम, मोहम्मद असलम साहब माइक खोल के पढ़िए।
जावेद अहमद भट्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। पहली लाइन पढ़ी ऊपर से पूरे चारों। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयुता, नून साकिन का इदगाम माल गुना हरफ या है। मय्यामल, नून साकिन का इदगाम माल गुना हरफ या है। यौमिन, नून साकिन का इदगाम माल गुना हरफ या है। इलाहन वाहिदन, तनवीन का इदगाम माल गुना हरफ वाव है। रहीम वदूदुन, तनवीन का इदगाम माल गुना हरफ वाव है। वहब्बत, नून साकिन का इदगाम माल गुना हरफ वाव है। रसूलुम मिनल्लाहि, तनवीन का इदगाम माल गुना हरफ मीम है। सिरातम मुस्तकीमा, रा मोटा पढ़ो। सिरातम मुस्तकीमा, तनवीन का इदगाम माल गुना हरफ मीम है। लिमन नुरीदु मिन नबीयिन, नून साकिन का इदगाम माल गुना हरफ नून है। नूरन नहदी, तनवीन का इदगाम माल गुना हरफ नून है। निमतिन, नून साकिन का इदगाम माल गुना हरफ नून है। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आबिद रफीक सब पढ़िए। आबिद रफीक चलिए, कोई बात नहीं। हजरत, आप लोगों को जो है ये पूरा पेज छुट्टियां, अब आपको कल से छुट्टियां हैं, है ना। 26, 27, 28, 29 4 दिन छुट्टी है। 4 दिन छुट्टियों में टाइम निकाल के जो है जब भी खाली रहेंगे ये इदगाम की प्रैक्टिस करना इसकी, और इसके अलावा ये पेज की पूरी प्रैक्टिस करना। इसके अलावा मैं क्या करूंगा, आपको वो भी भेजूंगा, इदगाम की प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। यहाँ पे ये देखिए, ये इदगाम के 4 हर्फ की प्रैक्टिस है। इदगाम माल गुन्ना के 4 हर्फ की प्रैक्टिस है। ऊपर नून साकिन का ब्लॉक है, नीचे तनवीन का ब्लॉक है। ये इदगाम माल गुन्ना के 4 हर्फ यौमिन की मिसालें हैं। नून साकिन में 4 हर्फ उसने प्रैक्टिस कराया है। पहले या की, फिर वाव की, फिर मीम की, फिर नून की। पूरे नीचे 5 मिसालें हैं। 5 या की है, 5 वाव की है, 5 मीम की है, 5 नून की। उसी तरीके से नीचे तनवीन के बाद या की है, तनवीन के बाद वाव की है, तनवीन के बाद मीम की है, तनवीन के बाद नून की है। ये मैं आपको ग्रुप में होमवर्क भेजूंगा, छुट्टियां हैं, और वॉइस मैसेज भी भेजूंगा। ये पूरा पेज सही होना चाहिए। हाँ, ये पूरा पेज सही होना चाहिए, और जो अभी पढ़ रहे थे वो भी सही होना चाहिए। तो हम लोग जो है छुट्टियों के बाद जो है हम इदगाम बिला गुन्ना वाले हर्फ पढ़ेंगे, उसके बाद सूरे पढ़ना शुरू करेंगे। और बहुत छुट्टियों के बाद बहुत अहम सेशन शुरू होगा। उसके बाद हम इखलाब पढ़ेंगे, उसके बाद हम इख्फा पढ़ेंगे। तो इस तरीके से फिर उसके बाद मीम साकिन के अहकाम पढ़ेंगे। तो बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग चैप्टर आने वाले। आप लोग जो है सब पाबंदी से आइए, और जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको भी बुला के लाइए। और पहले जैसा अटेंडेंस 50, 60, 70 रहते थे, वैसे पूरी रहने के लिए। वो ईद में शायद लोग मसरूफ हैं, ईद के बाद शायद आ जाए। अगर आपके मिलने जुलने वाले हैं तो सबको रिमाइंड करिए और सबको बोलिए आने के लिए। आज दुआ कौन पढ़ाए थे? सर इसकी किताब अवेलेबल है, ये जो अभी पेज दिखाए ना, मैं फिर पहले मैंने भेज दिया है ग्रुप में, किताब दोबारा भेज। हार्ड कॉपी अवेलेबल है, अगर कोई भी चाहे तो रिंग कर सकता है, बाय पोस्ट भिजवा सकते हैं। नॉमिनल रेट है इसका। आप दे दो, आपका नंबर दे देके भेज दो। मैंने उस पे मैंने व्हाट्सएप वर्क जो है वर्क ऐप पे है, अपना जो होमवर्क ऐप है उस पे दे दिया है। आप उसको इस पे कर दीजिए ताकि वो फॉरवर्ड करें। उस पे सब देख नहीं लेते हैं। अच्छा, मैं उसमें से देख के इसमें भेज दूंगा। वैसे आप मेरे को अलग से भेज दीजिए, मैं उसको ग्रुप में डालूंगा अगर वो मिस हो गया भी है तो। ठीक है, ऐसा है ना, उस पे दे दिया मैंने।
आप उसको अरे उधर वाह से उठा के माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह आपको जज़ा खैर दे सबको पता चले अवेलेबल है। हाँ अल्लाह आपको जज़ा खैर दे अल्लाह आपको जज़ा खैर दे बहुत अच्छा किया आपने। तो आज दुआ कौन पढ़ रहे थे? सर मैं पढ़ता हूँ। आप पढ़ लीजिए कोई बात नहीं, एक मिनट। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औज़ु बिल्लाहि शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हान रब्बिका सुब्हान रब्बिका रब्बिका रब्बिल इज्जति इज्जति अम्मा यसिफून अम्मा यसिफून वसलामुन वसलामुन अलल मुरसलीन। पढ़ा जाए वैसे ही पढ़े, जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे ही। अल्हम्दुलिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पाक है तुम्हारा परवरदिगार, पाक है तुम्हारा परवरदिगार, इज्जत वाले रब तो बड़ी इज्जत वाला है, बड़ी इज्जत वाला है। पाक है आप पाक है आपका रब, पाक है आपका रब बड़ी जो बड़ी इज्जत वाला है, बड़ी इज्जत वाला है बरी है उन तमाम बातों से और बड़ी है उन तमाम बातों से मुश्किल बयान करते हैं। वो सलाम हो तमाम मुरसलीन पर, सलाम हो तमाम रसूलों पर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ अल्लाह ताला की तमाम अल्लाह ताला की वाला है, जो सारी जहानों का पालने वाला है। माशाल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह साहब, आप लोग जो है बहुत अच्छा आप लोगों ने पढ़ा और आप लोगों को एडवांस में ईद मुबारक। मैं डालूंगा उसके अंदर ग्रुप में भी ईद मुबारक, और हम ईद की छुट्टियों का आपको भी ईद मुबारक एडवांस ईद मुबारक कबूल फरमाए। जी जनाब, शुक्रिया जज़ाकल्लाह, सबको ईद मुबारक जनाब। इंशाल्लाह 30 तारीख की सुबह को मुलाकात। हाँ सैटरडे के दिन सुबह मुलाकात होगी इंशाल्लाह। किस तारीख को इंशाल्लाह? जी क्या बताया? किस तारीख को अब स्टार्ट होगा इंशाल्लाह? हम सैटरडे की सुबह में पढ़ेंगे। 30 सैटरडे तारीख के दिन सुबह की क्लास होगी इंशाल्लाह। छुट्टियों का बता दिया हुआ है, फिर एक बार भेज दूंगा मैं, और क्लास कब शुरू हो रही वो भी नोटिस डालूंगा, रिमाइंडर डालूंगा। जज़ाकल्लाह खैरन सर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।